In this lecture, we will do change of dependent variable or normal form. If we have differential equation y double dash plus py dash qy equals to r, where p, q, r are functions of x and they are not constants, then we use different methods to solve such type of differential equation with the variable coefficients such that their coefficients become constant. So what methods we use? We use method of reduction of order. We use change of independent variables, normal form and variation of parameters. Till now we have done reduction of order, change of independent variables and variation of parameters. In this video, I will tell you about normal form or change of dependent variable. So what we do in this method? So we have first question, y double dash plus 2x y dash plus x square minus 8y equals to x square e raised to the power minus x square by 2. Here p equal to 2x, coefficient of y dash, q is equals to x square minus 8 and r is equal to the right hand side x square e की power minus x square by 2. So here we consider the term I equal to q minus half dp by dx minus p square by 4. So q is what? X square minus 8. So q हमने यहाँ लिख दिया minus half dp by dx. dp was 2x, so dp by dx is 2 minus p square by 4. 1 by 4 and p square is 4x square. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा दिस इज -9 विच इज अ कांस्टेंट. सो इफ वी हैव दिस टर्म आई is which is q minus half dp by dx minus p square by 4, this is a constant or constant upon x square, then our part of CF is z equals to e की power minus integral p by 2 dx. So we have this term I is equal to q minus half dp by dx minus p square by 4 is a constant or constant upon x square. Then our part of CF is z equals to e की power minus integral p dx by 2. So this is our part of CF. e minus half integral p was 2x, so 2x dx e की power minus x by 2, this is a part of CF. So if this is a part of CF, so let y equals to vz be another solution. एक solution और होना चाहिए क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाती है? y डबल डैश प्लस आई वी इक्वल्स टू आर बाय z, इसमें रिड्यूस हो जाती है. I वॉज माइनस का 9, सो v डबल डैश माइनस 9 v इक्वल्स टू r बाय z. r वॉज x स्क्वेयर e की पावर माइनस x स्क्वेयर बाय 2 एंड z इज आवर e की पावर माइनस x स्क्वेयर बाय 2, so this is just x square. Now we have to find its solution. So its auxiliary equation is m square minus 9 equals to 0 and m equals to plus minus 3. So complementary function is c1 e की power 3x plus c2 e की power minus 3x. Now we find its particular integral. For particular integral v डबल डैश है, v डबल डैश है तो उसकी जगह d स्क्वायर आएगा, माइनस का 9, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है तो कुछ नहीं आएगा. So this is 1 upon d स्क्वायर माइनस 9 and the right hand side x स्क्वायर. So minus 1 by 9, यहाँ से हमने क्या किया? -9 को डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल लिया, तो -9 को बाहर निकालेंगे तो आई एम लेफ्ट विद 1 माइनस डी स्क्वेयर बाय 9 इंटू में एक्स स्क्वेयर. अब ये है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये जो विच इज इक्वल्स टू वॉट? 1 माइनस एक्स का इनवर्स. तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इस तरह से लिखते हैं. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस एक्स लिखेंगे यानी डी स्क्वेयर बाय 9. नेक्स्ट केस में एक्स का स्क्वेयर यानी डी स्क्वेयर बाय 9 का होल स्क्वेयर, क्योंकि वो फोर्थ डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वेयर के साथ तो वो जीरो ही देगा. आगे हम करेंगे तो -1 बाय 9 ये बाहर रहेगा एंड एक्स स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई होगा. डी स्क्वेयर बाय 9 ऑफ एक्स स्क्वेयर इज सेकेंड डेरिवेटिव, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बाय 9. सो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? वी एक्स इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर माइनस 3x माइनस 1 बाय 9 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बाय 9. ये हमारा है पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? अभी हमने कहा कि जनरल सोल्यूशन क्या है? y इक्वल टू वी जेड बी अनदर सोल्यूशन. तो जनरल सोल्यूशन है ये हमारा y इक्वल टू वी जेड जो है वो जनरल सोल्यूशन बन जाता है. ठीक है, सो y इक्वल टू वी जेड जो है वो इसका जनरल सोल्यूशन है. सो y इक्वल टू वी जेड जनरल सोल्यूशन है. सो y ये है. v क्या था? v हमने अभी अभी निकाला, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर माइनस 3x माइनस 1 बाय 9 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बाय 9 v था एंड z वॉज e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 जो पार्ट ऑफ CF था. तो हमारे पास पूरा सोल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, solve y डबल डैश माइनस 2 बाई एक्स लॉग एक्स y डैश प्लस 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स होल स्क्वेयर y इक्वल्स टू लॉग एक्स.
सो यहाँ पे हम देखते हैं कि p क्या है हमारा, यहाँ पे हियर p इज इक्वल्स टू, p ये y डैश के साथ का कोफिशिएंट है, टर्म है, तो p ये है, q हमारी y के साथ की टर्म है और r हमारा राइट हैंड साइड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया p q r हमारे ये हैं। अब हम कंसिडर करेंगे वो टर्म i इक्वल्स टू q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाय 4। तो q मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का हाफ डी पी बाई डी एक्स, p हमारा ये है, उसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हमारा ये टर्म निकल के आएगी, ठीक है। माइनस का 1/4 टाइम्स पी स्क्वायर, सो माइनस 1/4 लिख दिया और p का स्क्वायर करेंगे, p वॉज ये वाली टर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कराया है, दिस इज, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग ले लेते हैं तो हमारे पास ये बन के आएगा 2 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम लेफ्ट विद माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अगर हमारे पास वो आई वाली जो टर्म है q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट आती है या कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आती है, तो हमारा पार्ट ऑफ सी एफ क्या होता है, e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स, ये होता है पार्ट ऑफ सी एफ। सो z इक्वल्स टू e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स जो है वो पार्ट ऑफ सी एफ है। p वॉज माइनस 2 बाई एक्स लॉग एक्स, सो e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रल माइनस 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा पार्ट ऑफ सी एफ। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, और सॉल्व करेंगे तो लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमें z मिल गया, पार्ट ऑफ सी एफ मिल गया, सो लेट y इक्वल्स टू वी जेड बी अनदर सोल्यूशन। अगर अनदर सोल्यूशन हमारे पास ये, तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाती है, y इक्वल टू वी जेड है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस तो ये होता है कि y डैश निकालेंगे, y डबल डैश निकालेंगे और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन के आ जाती है वाई वी डबल डैश प्लस आई वी इक्वल्स टू आर बाय जेड। सो वी डबल डैश लिख दिया, आई वॉज माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर, वी इक्वल टू आर बाय जेड, ये जेड हमारा लॉग एक्स निकल के आया और आर बी जो है वो हमारा लॉग एक्स था, तो ये चीज़ यहाँ पे 1 बन जाएगी। इसको हम फर्दर लिखेंगे तो क्या कराए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर वी डबल डैश माइनस 2 वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन बन गई है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया है, लॉग एक्स को यू सब्सटीट्यूट कर दिया। सो पुट u इक्वल टू लॉग एक्स, अगर u इक्वल टू लॉग एक्स है तो x हमारा e की पावर u बन जाएगा, सो x हमारा यहाँ पे e की पावर u हो जाएगा। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डी टू वी बाई डी यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमने ट्रिक यूज़ करी है कॉशी ऑयलर इक्वेशन से, हमने डायरेक्टली इक्वेशन बनाने की। जब हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, हम डायरेक्टली कर रखा है उसको कि डी टू वी बाई डी यू स्क्वायर तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे होता है ये बी माइनस ए, सो बी इज़ वॉट। सो अगर हमारे पास इक्वेशन है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी वाई इक्वल्स टू 0 कह लो या आर कह लो, कुछ इस तरह से आर कह लो, चलो ठीक है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम कॉशी ऑयलर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स इक्वल्स टू ई की पावर यू अगर मैंने लिख दिया तो इक्वेशन क्या बन जाती है हमारे पास, डी टू वी बाई डी यू स्क्वायर बन गई है, इस केस में तो डी टू वाई बाई बनेगी, सॉरी डी टू वी बाई, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, एक मिनट, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी टू वाई बाई डी यू स्क्वेयर ये बन जाएगी प्लस डी टू वाई बाई डी यू स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा और डी वाई बाई डी यू आएगा। तो यहाँ पे जो टर्म होती है वो b माइनस ए हो जाती है, b यानी ये एक्स वाई डैश का कोफिशिएंट और a यानी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का वाई डबल डैश का कोफिशिएंट, तो उसका यूज़ करेंगे तो b माइनस ए। अब यहाँ पे वी डैश का तो कोफिशिएंट है नहीं तो उसकी जगह 0 लिख देंगे। सो यहाँ पे वी डैश का कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह 0 आ गया, माइनस ए आएगा यानी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का कोफिशिएंट यानी इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा और बाकी सारा टर्म एज इट इज़ आता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाती है इक्वेशन।
सो ये क्या बन जाती है, डी टू वी बाई डी यू स्क्र प्लस बी माइनस ए डी वी बाई डी यू माइनस टू वी इक्वल्स टू एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र है, एक्स ई की पावर यू है, तो एक्स स्क्र करेंगे तो ई की पावर टू यू बन गई। ठीक है, अब ये इस तरह की फॉर्म की आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम स्क्र माइनस एम माइनस टू इक्वल टू जीरो और एम इक्वल्स टू टू माइनस वन। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये बन जाएगा सी वन ई की पावर टू यू प्लस सी टू ई की पावर माइनस का यू। ये बन गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है उसको हम यहाँ लिखेंगे 1/d-2d+1 एंड राइट हैंड साइड में था e की पावर 2u। और फर्दर क्या करा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या करा है, e की पावर 2u है और d-2d+1 है। क्या करते हैं हम, जब एक्सपोनेंशियल होता है, जो कोफिशिएंट होता है उससे उसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 अगर इधर डालेंगे इस वाले में d-2 में, वो तो 0 देगा, तो वहाँ तो हम डालेंगे नहीं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो 1/3 एंड d-2 एज इट इज़ एंड e की पावर 2u, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अब इस 2 को इसमें डाला जाएगा तो वो 0 देगा, d-2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो 0 देगा। तो क्या करेंगे, नीचे डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d। तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा एंड ऊपर u से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो u e की पावर 2u/3, ये इसका आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका ये है c1 e की पावर 2u प्लस c2 e की पावर माइनस यू एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका ये आ गया u/3 e की पावर 2u। बट हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। सो इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। सो वी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो u क्या था, अभी हमने क्या कहा, u इक्वल टू लॉग एक्स था। सो u की जगह हम लॉग एक्स डाल देंगे। तो उसको डालेंगे u की जगह जब हम log x लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा c1 e की पावर c1x स्क्वायर e की पावर माइनस का u है। तो u इक्वल टू अगर log x है सो x इक्वल्स टू e की पावर u हो जाएगा एंड e की पावर माइनस u है तो उसकी जगह 1/x आ जाएगा। तो ये 1/x हो गया है। u/3, u वॉज log x तो log x/3 एंड e की पावर 2u उसकी जगह x स्क्वायर आ गया। देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन क्या था, y इक्वल टू वी जेड था जनरल सोल्यूशन। v हमें ये मिल गया तो v हमने यहाँ डाल दिया और z था हमारा log x। सो y इक्वल्स टू वी जेड जो है जनरल सोल्यूशन था जो कि हमें निकालना था। सो वी आर डन। थैंक यू।